आज सोशल जस्टिस डे है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हामिद रसूल जी। तो सर आप इस पे अपने कुछ विचार विमर्श कीजिए। थैंक यू सो मच। सोशल जस्टिस डे मनाने का पर्पस हमारा ये है कि दिस ब्रिंग्स अवेयरनेस अमंग द मासेस कि सोशल जस्टिस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सोशल जस्टिस हर साल यूएनओ अपना एक थीम बनाती है, थीम चुनती है और उस थीम को प्रमोट करती है सोशल जस्टिस डे पे, जो कि 20 फरवरी हर साल मनाया जाता है। तो सोशल जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग जानते हैं। सोशल साइंसेज में हम लोग सोशल जस्टिस पे कितना फोकस करते हैं, और दूसरी सारी पढ़ाई अगर हम देखें तो सोशल जस्टिस पे वी आर फोकसिंग एवरीवेयर। एंड व्हाई वी आर फोकसिंग? बिकॉज सोशल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। इफ देयर इज नो सोशल जस्टिस देयर विल बी क्योर्स इन द सोसाइटी। आ सोसाइटी में सब लोगों को एक समान तौर पे अपॉर्चुनिटीज मिले, समान तौर पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, समान तौर पे उनको राइट टू फूड, इक्वालिटी, एजुकेशन मिले। तो फॉर दैट द सोशल जस्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो सर आपका कोई मैसेज सोसाइटी के लिए? हमारा यही मैसेज है सोसाइटी के लिए कि टू बी एजुकेटेड, टू बी गाइडेड, टू बी अवेयर एंड टू बी विजिलेंट सो दैट सोशल जस्टिस कैन बी प्रमोटेड। तो अभी आपने मेरे दोस्त अलंकृत के साथ देखा, डॉक्टर हमीद ने बताया कि व्हाट सोशल जस्टिस इज अबाउट। अब मेरे साथ डॉक्टर मोनिका नारंग जी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है लॉ स्कूल में और काफी चहेती भी हैं बच्चों की। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम आज सोशल जस्टिस डे मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं और क्या है इसके बारे में विशेष प्लीज बताइए। देखिए शुभम, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगी कि जो आज बहुत प्रेस्टिजियस डे है, दैट्स वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। दिस इज रिलेटिंग टू दैट काइंड ऑफ से इक्वालिटी, जस्टिस and that equitable behavior that which should not be ignored. So first of all, I would like to share that I am a human rights teacher also. I am running a course in human rights here. So not in that view, but as a say human being too, that for everyone human rights are say mandatory, and these are those kind of rights which cannot be say taken away. These are inviolable rights and they are meant for everyone. And the basic fundamental principle behind this social justice is the equality and the enjoyment of the rights. Article 14. Yes, Article 14, which is granted by the Constitution of India, so which is for everyone, and that cannot be denied on all the conditions. But we can see today that this kind of behavior is being ignored. Say disappointments, we find disappointment in younger generation, in the vulnerable sections of the society also. But everyone, in view of that, everyone should understand their duty. So if we are asking for our rights, we should understand with our duties also. So if this behavior is done, because this is vice versa, that you ask for your rights but you don't understand your duty. So first of all, as duties are also granted by the Constitution of India and demanded as per the natural behavior, as per the human rights behavior. We also have the natural justice rules which are followed, and like in the courts also, these rules are followed, that both the parties are to be heard. You cannot give a decision only by listening to one party. So coming to this World Social Justice Day, this day is observed on 20th February of year. So it has been established by the United Nations General Assembly in 2007. So right from that time, that does not mean that it has not been followed, but to some extent it has played. Like if we talk about the General Assembly, the working of the General Assembly, and if we talk about the United Nations, for a general public, they will say that what UN is doing. But no, as a teacher of human rights, as a teacher of public international law, no, this is actually safeguarding the rights of the citizens, not only in our country but throughout the world, because today is the time that almost all the countries are the members of the United Nations. Ma'am, as we talk about this United Nations, we see that in MDGs too, social justice was part. Now in SGP goals, yes. social justice is playing a major role. Yes. How you see चीजें पे आ सकते हैं? In social justice, many things can be included. Like it's just a wide, say, a spectrum of various laws. If we look about our legal procedure,
See, there are so many of the rights, like even a teacher who has taught, say, for 20 years or 25 years, they are not aware of some of the laws which are already there. So because it's a sea, there's a seas of law. So, but if laws are properly implemented, if laws are properly, say, followed, and the general public should also understand it. That all the having knowledge on the rights, that does not mean that now the social justice has been granted. That's why I was saying that they should understand it, the proper implementation should be there, and whenever there is a violation, you should also, why not to fight also, but also to safeguard the rights of the others. So this should be the essence of your this social justice. As per coming to the theme, Shubham, that the theme of this time, the World Social Justice Day is empowering, because our point is focused on that, empowering inclusion, bridging gaps for social justice. This is the theme of this World Social Justice Day. So what is the, say, purpose of this theme? What is the motive behind this theme? That is, it is emphasizing the need for policies that ensure everyone has equal opportunities and access to resources. So this should be followed in a very clear sense. Then there is a call for lifelong learning and social protections to fight inequalities, unemployment, social exclusions, poverty, and healthcare is so much important. Healthcare, that they should be focused on healthcare. And today the environment that we are talking about, it's not only one subject. The environment is covering so many of the, say, areas that not to talk of the earth, but even that I am teaching my students about the space law. Just see, and there are certain agreements which are adopted by the United Nations organization, which is focusing on that to safeguard our space, because today even the space is being polluted. That the devices that countries are sending there, now they are dead, but they are just revolving around the space. So there are treaties, like we have the Moon Treaty, this is very important. So our focus should be go to that extent, that which is giving you that right, that kind of right which is safeguarding and protecting the human beings from the various affairs. So that's all I have to say. Ma'am, but I have a question, ma'am. Yes. You talk so bluntly about everything, from space to empowerment to poverty. Because I have suffered a lot, that's why I have to say. Ma'am, but if we talk about today's thing, the world like celebrating globally, we have seen that girls or women are especially face of these kind of movement. When we talk, UN started many missions regarding to migration. We have always seen that women suffer a lot. How you think? We talk about women as a vulnerable section. From ma'am, do you think there is now a big change? That women are strong now enough that they have such kind of rights which are protecting them, and they are now at a good, I can say, advantage. No, I disagree with you, Shubham. The attitude and the, say, awareness amongst the women has changed a lot now, and they are most very well aware. We find that discrimination only in the rural areas, because, and we also trying our best to reach to that level also. You know, we have a facility in our legal procedure, we have legal aid literacy camps. Yes, sir. So the basic fundamental, say, motive behind that conducting those camps is that reaching out to those women, because not to talk about the rural areas, they are very much aware. And I have searched, I have made a research in some of the areas like Balabar and Ramnagar. If you happen to see there, the most of the females, they are the teachers. They are working there as teachers, in most of the families, even if they are very conservative or not, but they are in that teaching profession. So see, this is a kind of development that you can say, yes, transition. Yes. That, because in our state only, they are mostly they are working in the education sector. So somewhere we can say, as technology is coming, women we have Prevention of Sexual Harassment Act. Yes, so there are 3 parts, that given protection at the workplace. We have Vishaka Supreme Court's guidelines are given by the Vishaka guideline. Vishaka's case is there, where the Supreme Court has given the guidelines for the protection of women. So that's a development which has actually
watch safe. We have cases in our institute also, and we have internal complaint committee within the campus that they are working on these cases. So that means that watch safe of those rights are there, that facility is there, and the point is that women should be aware of it. Girls should be aware of it. Otherwise, you cannot change. That's why we are celebrating these kind of Yes, days. you cannot change that mental setup of. That's not a generalized statement. There are people, those who are very considerate, those who respect women, but we find the negative people also in the world. Those who actually pollute the society. So our endeavor should be to make them aware. We cannot teach them. It's their own say learning right from their homes. But at least we can we can try to groom them, but that pollution is done by only that section of the people, but otherwise we have the positive people. For your time. देखा हमने मोनिका मैम से बात की सोशल जस्टिस डे के बारे में, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के बारे में, और मैम ने हमें बताया कि सोशल जस्टिस डे और इन दिनों को बनाने से हम जो वेलरेबल सेक्शन है सोसाइटी को, उनको किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बी अवेयर, बी इंक्लूसिव। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। तो मेरे साथ लॉ स्कूल के डॉक्टर नितिन है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। आज मैं इनसे बात करूंगा वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे पर। सर, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले सर, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन दिस स्पेशल डे, क्योंकि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की बात की है, जो समानता की बात करता है। और बीइंग अ स्टूडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉ स्टूडेंट कहूंगा तो बाकी लोगों को लगेगा कि शायद ये सिर्फ लॉ की बात करते हैं, इन द सेंस के संविधान की बात, क्योंकि संविधान हर किसी को आना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और उस एंगल से देखा जाए तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अंदर जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है समान अधिकार की, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सो इन चीजों को देखते हुए संविधान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो सामाजिक जो न्याय दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर मैं एज ए टीचर बात करूं तो मुझे लगता है कि विद इन द क्लासरूम एज वेल एज आउटसाइड द क्लासरूम हम कोशिश करते हैं, और खासकर जो लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपने बात की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और हमने देखा है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें जो समावेशी जो पाठ्यक्रम हो, या आप उसको बोलें कि जो एक क्रिटिकल जो है पेडागॉजी हो, या यहाँ का जो करिकुलम है, या यहाँ की जो और जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको देखते हुए आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस को वाकई में अगर साक्षर किया गया है, अगर उसको आत्मसात किया गया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के विभिन्न विभागों में, और खासकर जो कानून का इदारा है उसके अंदर इसको बिल्कुल बारीकी से इसको देखा जाता है, समझा जाता है। मुझे लगता है कि आपके हमारे स्टूडेंट से भी बातचीत हुई होगी, और कैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन पे यहाँ वर्कशॉप होती है, ड्रग एडिक्शन पे वर्कशॉप होती है, ट्रांसजेंडर्स पे वर्कशॉप होती है, नेशनल लेवल की वर्कशॉप हमने यहाँ पर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर डायरेक्टर डॉक्टर सीमा मेहता मैडम। और टाइम एंड अगेन आपने देखा होगा कि बच्चों का जो हमारा जो एक सपोर्ट है इन सभी एक्टिविटीज के पीछे, बच्चे विभिन्न जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, और क्लासरूम में भी हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, सभी के जो ओपिनियन सुनने की कोशिश करते हैं, और वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए हर किसी की लाइफ में ये भी कोशिश की जाती है। क्रिटिकल पेडागॉजी के हवाले से बताऊं तो हम बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी समाज के अंदर जो इंजस्टिस हो रहे हैं, सोशल इवल्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, बच्चे उस पर आवाज उठाएं, बच्चे उस पर लिखें। और आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से, खासकर मैं बात करूं पिछले 2-3 सालों से, आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं किस तरीके से जो लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें उनके कॉलम्स आते हैं, किस तरीके से जो ब्लॉग्स हैं उस पे बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन है। और अभी कुछ दिनों की बात करें तो राइटली फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर अगर देखा जाए तो बड़े से जो प्रीमियर जर्नल्स हैं इंडिया के, वहां पर हमारे जो बच्चे जो कि 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में है, सीनियर बच्चों की तो बात रहने दीजिए, वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, एनजीओ के साथ काम करते हैं। बट जो बच्चे अभी आई थिंक जो प्राइमरी ईयर्स में है, 2nd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, और जो इश्यूज उठाते हैं वो सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो समावेशी बिंदुओं के ऊपर जो केंद्रित करते हैं। चाहे वो जो दिव्यांगजन की बात करें उनके बारे में लिखा जाता है, एल्डरली जो सेक्शन है हमारी एजिंग पॉपुलेशन के लिए, हमारे बच्चों ने उनके बारे में लिखा है। उसके बाद और भी बात करें तो जो यहाँ पर जो बच्चों के जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो हमारी अप्रोच जो है वो आउटरीच को भी बड़ा बढ़ावा देती है। अब आपने देखा होगा हमारा लीगल एड कैंप है, क्योंकि हम लीगल एड जो यहाँ के कमेटी है, हम सब जो टीचर्स हैं उसके साथ काम करते हैं। और खासकर जो अभी मोनिका नारंग मैम ने भी आपसे बात की होगी, तो बताया होगा किस तरीके से जो लीगल एड जो सेल है, हम कैसे लोगों के बीच में जाते हैं। जन सुनवाई का अभी हमने एक प्रोग्राम रखा, हम लोगों के बीच में गए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। जो अनऑर्गेनाइज लेबर है
उनके लिए ई श्रम कार्ड का एक आपको मालूम होगा, ई श्रम कार्ड जो है हमारे बच्चों ने उनकी सहायता की। बच्चों ने लैपटॉप घर से लेके गए हैं, उनको पूरा प्रोसीजर बताया है। उसके बाद कुछ जो महिलाएं थी वहां पर, कुछ जो है ऐसे लॉज हैं जो कि वुमेन वेलफेयर लेजिस्लेशन से, उसके बारे में अवगत कराया। कुछ बच्चे थे, उनको चाइल्ड लाइन के बारे में बताया गया कि चाइल्ड लाइन 1098 पे कॉल कीजिए, ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको ये करना चाहिए। और उसके बाद हमारे बच्चों ने सर्वे भी किया डिफरेंट जो हेल्थ जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, लोगों को क्या मुश्किलातें आ रही हैं, वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के दिया। तो किस तरीके से जो आयुष्मान कार्ड की बात करेंगे, जो कि हर वर्ग को जो है वो कोशिश करता है कि जो राइट टू हेल्थ उसका इंश्योर हो। तो आयुष्मान कार्ड से लेकर ई श्रम कार्ड से लेकर हमारे बच्चे जो है वो महिलाएं हो, बच्चे हों, डिफरेंट एरियाज में जाने के बाद, और इवन दो हमारे बच्चे टूरिज्म और हेरिटेज के बारे में भी बात करते हैं, उनके बारे में भी बढ़ावा देने के लिए, और वो चीजें भी किसी ना किसी तरीके से आम जनमानस से जुड़ी है, क्योंकि किसी का लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है। तो किस तरीके से समाज में हर वर्ग के लिए सोचा जाए, और बाय वे ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज, बाय वे ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, बाय वे ऑफ लीगल एड कैंप्स, बाय वे ऑफ जन सुनवाई, बाय वे ऑफ इवन डिफरेंट जो पैनल डिस्कशंस है, आपने देखा होगा किस तरीके से जो हमारे बच्चे जो है वो ध्वनि जेयू जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, वहां पर भी जो भी कुछ डे होता है इंपॉर्टेंट, बच्चे उसकी अहमियत को लेकर चले जाते हैं। और खासकर पर्यावरण की जो चीज है, अब जो पर्यावरण है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि पर्यावरण का जो है सोशल जस्टिस से क्या लिंकेज है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिंकेज है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो आज की डेट में इन्वायरमेंटल जस्टिस के साथ लिंक है। तो जो लोग जो है एक पर्टिकुलर जो है इनकम लेवल से नीचे है, या जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जो टफ टेरेन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, क्लाइमेट को आज की डेट में क्लाइमेट रिफ्यूजीज कहा जाता है, वो लोग जो है वहां से दरबदर हो रहे हैं। जिनकी इनकम कम है वो एयर पोल्यूशन से इंपैक्ट हो रहे हैं, उनको बीमारियां लगती हैं, उनका इलाज करने के लिए कोई नहीं है। तो ये सारे की सारी चीजें जो आगे पीछे हम सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, और जो स्टडीज इसके ऊपर जो एंडोर्स करते हैं इस चीज को, कि सारी की सारी चीजें जो सामाजिक समावेश है उसको बनाने के लिए जिम्मेवार है, उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप है। और इसलिए जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बीइंग मीडिया, जो मीडिया का रोल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सामाजिक समावेश को बनाने में के लिए जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा रोल उसका है। और आपने किस तरीके से इस इशू को जो है वो टेकअप किया, आप सुबह से ही आपने 2 बार मेरे से भी बात की, हमारे सीनियर टीचर्स ने भी कहा कि जैसे आप डिफरेंट लोगों का विद इन द जम्मू सिटी आप ओपिनियन ले रहे हो, और खासकर में अच्छा लगा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के काम को देखते हुए, जैसे आपने लीगल एड कैंप या जन सुनवाई या लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो रहा है, वो देखते हुए आपने सोचा कि बच्चों से बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे और प्लेज भी लेंगे हमारे बच्चे, और हमारे बच्चे इसके लिए हमेशा जो है वो फ्रंट रनर है इस इश्यूज के लिए, कि जितने भी लोग हैं जो जिनकी आवाज जो है, जो कि मार्जिनलाइज्ड है, वल्नरेबल है, या जो जिनकी आवाज दूर तक पहुंचना मुश्किल है, हमारे बच्चे उनकी आवाज बने, क्योंकि वो फ्यूचर लॉयर्स हैं। जो लॉयर्स हैं वो सोशल इंजीनियर्स हैं। तो सोशल जस्टिस डे और सोशल इंजीनियरिंग जो है वो तो इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये जो कानून के अंदर ही जो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट है या सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है, रॉस्को पॉइंट ने दिया है कि लॉयर्स जो है वो सोशल इंजीनियर्स होते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे और हम सब मिलके बखूबी वो काम करेंगे, हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। और खासकर मीडिया, आप कोतवाल साहब, शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपकी टीम अलंकृत भी हमारे साथ है, और आपने इस इशू को बताया, हाईलाइट किया, और हम चाहेंगे कि दिन ब दिन जो इनइक्वालिटीज है समाज के अंदर, हम उसको कम करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, मुझे लगता है कोई ऐसा पार्ट नहीं रहा जिसको नितिन सर ने यहाँ पे डिस्कस ना किया गया हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने बताई नहीं हो, कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने आज हम जिस भी मुद्दे के ऊपर बात कर ले सोशल जस्टिस के, वो सब चीजें यहाँ पे पूर्ण होती है। और जम्मू यूनिवर्सिटी इसका खास कर ध्यान रखता है। इन्होंने अलग अलग गांव भी अडॉप्ट किए हैं जिनको ये अवेयर भी कर रहे हैं रिगार्डिंग टू दिस। तो मुझे लगता है ये जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप है। आप किस तरह से देखते हैं, अपने जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Hello everyone, I am Ankita Sharma from 5th semester law school. So today we are celebrating the Social Justice Day, and I am also here to speak for the topic. So see, if we look deeply into the topic, there is nothing to like exaggerate it. It's a very basic simple term whose preliminary aim is just to provide the justice to all. आप किसी भी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में हैं, यू वुड ऑल्सो वांट कि आपको भी यू शुड ऑल्सो बी गिवन अ फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड, यू नो, एंड यू शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द जस्टिस। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपकी किताबी बातों में क्या लिखा गया है एंड ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। इफ वी स्टिल सी द सिनेरियो गोइंग ऑन, स्टिल द women are being so ill treated, we are afraid of going out of our homes, still people are being body shamed, they are ill treated on the basis of how they look, on the basis of their appearances, and my heart just goes out, you know, to think about the transgenders जो अभी भी struggle कर रहे हैं to find this position on this in this society, you know। पता नहीं कब और कैसे होगा, लेकिन यू नो वी नीड टू अचीव दिस जस्टिस दैट इज
still pending. Hi, I'm Harmanan Kaur. Today is 20th February 2025 and it is World Social Justice Day. Happy World Social Justice Day to you all. As a law student, I advocate for social justice. Now, to advocate social justice in the society, with the help of our professors and respected director Seema Rumitra ma'am, in our law school, we have legal aid team where we propagate for legal aid and we tell people about their rights and how they can avail those rights and what kind of rights they have to get social justice. Now, social justice is a concept which is not just for the privileged class. It is a concept which is for everyone, and the underprivileged should not be hindered from that concept, right? So, to avail social justice, everyone, irrespective of their class, caste, status, gender, role, or whatever, they should not be hindered from social justice. So, I, as a student of law, I propagate for social justice. Thank you. My name is Tanvi Bhagat and I'm a third year law student, and right now currently I am studying in the Law School University of Jammu, and as we all know that today is 20th February and we are celebrating the World Day of Social Justice. So talking about, as a student of law, we are all revolves around the justice, legality, law, criminal laws, about lawyers, judges. So here we are celebrating social justice. Social justice is basically provide equal opportunity to all, provide justice to every citizen without any discrimination on the basis of race, religion, sex, etc. So as we all know, the social justice is globally revolves around our countries, and the International Court of Justice is one of the example, because the United Nations has adopted the International Court of Justice that also deal with the international court and the justices and provide justice to the discriminated peoples. And in our country, even in India, that in 2023 there is a new criminal law that was introduced for us, and it was basically deals with the new peoples, for the peoples who are being discriminated, because as we all know that we have CRPC, IPC, that was very old laws, that is 1982 of. So these laws are actually help the people to get proper justice, to get equal opportunities in the society. And also, if we talk about social justice in other perspective, there is number of cases, there is number of laws, there is number of amendments, acts also introduced in our nation, that is the for number of sections of people, like for transgenders, for girls, for other citizens. And I will definitely say that the social justice is evolving day by day and the people are getting justice, and we as a student of law, we also help from our side, we also do our best to provide justice to the citizen of our nation. नमस्कार सभी को. This is Gitansh Thakur, a third year law student of the Law School University of Jammu. So today, as we all know that today is Social Justice Day. Today is 20th February 2025 and the people are celebrating World Social Justice Day. So as a Pahari student, I basically belong to district Kishtwar, while टोडा डिस्ट्रिक्ट हूँ कि 2025 चल रहा है, इतना ज्यादा एडवांस सब कुछ हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, मेडिसिन, पॉलिटिकल एडवांसमेंट इतना कुछ हो गया, लेकिन स्टिल आई कैन सी दैट जो किश्तवाड़ के लोग हैं उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड नहीं की जाती हैं. वो आज भी कुछ छोटा से छोटा ऑपरेशन करने के लिए वो जम्मू उनको रेफर करना पड़ता है, 200-300 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है. जिस पर्टिकुलर जगह से मैं हूँ वहां पर मैं ये चीज देखता हूँ कि पानी तक लेने के लिए लोगों को कितने दूर तरीके से जाना पड़ता है. क्योंकि मैं बेसिकली वहां से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं वहां की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. एजुकेशन फैसिलिटीज की बात की जाए तो मेरे घर वाले जब यहाँ पर आए थे तो हमने भी यहाँ पर काफी कुछ झेला है, मतलब मेरे जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स थे. आज भी मैं देखता हूँ लोग वहां से माइग्रेट करने के पीछे जाते हैं. हालांकि किश्तवाड़ 2012 में एक जिला घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां पर प्रॉपर मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, जो कि आज 2025 चल रहा है. जगह जगह पे सारे लोग तंग पड़ रहे हैं कि हमें जम्मू जाना है, हमें दिल्ली जाना है, जबकि किश्तवाड़ में इतनी प्यारी जगह है, ब्यूटीफुल जगह, बट द प्रॉपर सोशल जस्टिस इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड ओवर देयर. I request all the citizens of Jammu and Kashmir and Kishtwar and all the other backward areas like Rajouri, Poonch, Doda, Bhadrawah, Ramban and Kashmir as well कि लोगों को आपस में ही वो जागरूकता लानी पड़ेगी, तब जाके ही वो एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ जा सकेंगे. क्योंकि ऐसे सिर्फ सारे काम पॉलिटिक्स पे थोपना, पॉलिटिकल लोगों पे थोपना और खुद उस चीज को लेकर जागरूक नहीं होना, तो वैसे काम नहीं बनेगा. लोगों को अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा.